hair when it is falling, God knows it. बाइबल में लिखा है कि अगर एक बाल भी नीचे गिरता है वो भी प्रभु जानते हैं। So the God that you and I worship, He is an amazing God. तो जिस परमेश्वर की आप और मैं आराधना कर रहे हैं वो अद्भुत परमेश्वर। So even as we are going through a time of Corona, तो ये कोरोना के समय में से जैसे हम गुजर रहे हैं, and even as there's a lockdown all around, और लॉकडाउन भी चल रहा है, and there is no job, there is no work going around right now. और किसी का काम भी नहीं चल रहा है, there is a challenge which is coming up now. तो एक ऐसी बड़ी चुनौती आ रही है। Not only there is fear of Corona, ना ही सिर्फ डर है, but there are different kinds of fear which are rising up in the hearts of people. लेकिन लोगों के हृदय में अलग-अलग प्रकार के डर ऊपर आ रहे हैं। Luke chapter 21 and verse 25 says that the hearts of men will be perplexed. लूका 21 और वचन 25 कहता है कि मनुष्य के जो हृदय है वो गड़बड़ी में आ जाएंगे। Yeah, they will be perplexed. Luke 21 and verse 25. It says the heart will be perplexed. लूका 21 और 25 में लिखा है कि हृदय गड़बड़ी में आ जाएंगे। Perplexed means man doesn't know a way out. परप्लेक्स का मतलब है कि मनुष्य को कोई रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा कि बाहर कैसे आए। Right now, our government and the governments of the whole world, the scientists, they are trying to get a solution for this virus. इस वक्त गवर्नमेंट है, वैज्ञानिक है, सब कोई सुझाव ढूंढ रहे हैं कि यहाँ से हम कैसे बाहर आए। Yeah, so there is a lot of, people don't know what to do now. तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। Yeah, so in the midst of all this pressure that they don't know what to do, तो ये सब दबाव के बीच में कि पता नहीं चल रहा है कि क्या किया जाए, that time, उस वक्त, yeah, the hearts of men begin to melt. तो लोगों के हृदय जो है वो पिघलने लगते हैं। I believe there are at least 200-300 or 400 people hearing me right now. मेरा विश्वास है कि इस वक्त शायद 200, 300, 400 लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं। But I don't know what is happening in your heart, even as a child of the Almighty God. लेकिन मुझे ये नहीं पता कि इस वक्त आपके हृदय में क्या हो रहा है। Yeah, but my answer to you is today this. लेकिन मेरा उत्तर आपके लिए यही है, That man is looking for somebody who will give them a way out of this problem. मनुष्य किसी को देख रहा है कि कोई तो उसे इस समस्या में से बाहर निकाले। And I want to tell you, there is only one leader who can help man to come out of any problem. मैं आपको कहना चाहता हूँ कि सिर्फ एक ही अगुवा है जो मनुष्य की मदद कर सकता है इसमें से बाहर आने के लिए। And that leader, is your father. और वो अगुवा, वो आपका अगुवा है, वो आपका पिता है। And his name is Jesus. उसका नाम है यीशु। He has revealed the Father to you and me. उसने पिता को आपको और मुझे दिखाया है, प्रकट किया है। So the first promise which I want to give you from the presence of the Almighty God. तो पहली प्रतिज्ञा जो मैं आपको देना चाहता हूँ प्रभु की उपस्थिति में से, God says, don't fear. प्रभु कह रहे हैं डरो मत। The second thing God says, दूसरी बात प्रभु कह रहे हैं, I am with you. मैं तुम्हारे साथ हूँ। And the Lord says, walk close to me and you will know my heart. और प्रभु कह रहे हैं कि मेरे साथ नजदीक से चलो और फिर तुम मेरे हृदय को जानोगे। There are too many voices which are going around. People are saying, this is happening, that is happening, this is happening. बहुत सारी आवाजें इर्द गिर्द घूम रही है, लोग कह रहे हैं ये हो रहा है, वो हो रहा है। But I want you to learn that if you can become like an apostle called John, who used to lean on the heart of God and hear his heartbeat, I want to tell you, it will be well with you. लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप यूहन्ना के जैसे बन जाओगे, जो प्रभु के हृदय से चिपका रहता था और प्रभु की आवाज सुनता था, तो आपके साथ अच्छा ही होगा। And I pray that it is a time that everybody gets closer to God through Jesus. मेरी प्रार्थना कि ये ऐसा समय है कि सब प्रभु के और नजदीक आ जाए यीशु के द्वारा। And I want to give you good news. At this moment, there are hundreds and thousands of people who are receiving Jesus as their Lord and Savior. और मैं आपको अच्छी खबर देना चाहता हूँ कि इस वक्त हजारों लाखों लोग हैं जो यीशु को अपना रहे हैं। I heard testimonies after testimonies in our church. People are coming to Jesus. मैं हमारी कलीसिया में इतनी गवाहियां सुन रहा हूँ कि लोग प्रभु के पास आ रहे हैं। Families are getting saved. परिवारों में उद्धार आ रहा है। So in the midst of challenge, Jesus is alive. Jesus is working. तो ये चुनौती के बीच में भी यीशु तो जिंदा है और यीशु काम कर रहे हैं। So today I want to talk to you about the grace to pray. तो आज मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ ये प्रार्थना का अनुग्रह, उसके बारे में। Because I believe Pastor Reddy and Pastor one more pastor, I just forgot his name. They spoke to you about God. लेकिन मेरा विश्वास है कि पास्टर ने आपसे प्रभु के बारे में बात की है। And you are encouraged by what they spoke to you. और आप उत्साहित हो गए हो उन्होंने जो बात की है उससे। And so today I want to talk to you about prayer and maybe give you some prophetic words. And in the end, I'm going to really believe God for miracles to happen in your life
in your family, in your church, and in your city for the glory of God. तो आज मैं आपसे प्रार्थना के बारे में बांटूंगा और शायद थोड़े भविष्यवाणी के शब्द कहूंगा और विश्वास करेंगे कि सच में आपके जीवन में, आपके परिवार में कुछ तो होगा। Yes, joy comes from God. आनंद जो है वो प्रभु की ओर से आता है। It is a substance which God gives. वो ऐसा पदार्थ है जो प्रभु देता है। And in John 16 and verse 24, और यूहन्ना 16 और वचन 21 में Jesus said a very beautiful thing. यीशु ने एक बहुत सुंदर बात कही। You know what he said? आपको पता है क्या कहा? He said, उन्होंने कहा, ask the Father in my name, पिता से मांगो मेरे नाम में and he will give it to you. और वो आपको जरूर देंगे। Jesus is saying, ask the Father in my name, and he will answer your prayer. यीशु कह रहा है पिता से मांगो मेरे नाम में और वो तुम्हारी प्रार्थना जरूर स्वीकारेंगे। And then he says, और फिर कहता है that answered prayer will bring joy to you. वो प्रार्थना जिसका जवाब तुम्हें मिलेगा उसके द्वारा तुम्हारे जीवन में आनंद आ जाएगा। So get ready, brothers and तो sisters. तैयार हो जाओ भाई और बहनों। My God in heaven is ready to answer your prayer because of Jesus. हमारा प्रभु जो स्वर्ग में है वो तैयार है आपकी प्रार्थनाओं का जवाब देने के लिए। And because your prayer will be answered, there will be a joy which will begin to spring in your heart, and you will delight in the Lord your God. और क्योंकि आपकी प्रार्थना का जवाब मिलने वाला है तो वो आनंद आपके जीवन में भर जाएगा। So I prophesy over you, तो मैं आपके ऊपर भविष्यवाणी करता in हूँ the mighty name of Jesus, यीशु के महान नाम में the joy which comes from answered prayer will be a part of your life. वो आनंद जो प्रार्थनाओं का जवाब मिलता है उसके द्वारा जो आता है वो आपके जीवन का भाग होगा। In this last 40-50 days, I have seen miracles, I have heard about miracles happening. इन गए 40-50 दिन में मैंने चमत्कारों के बारे में सुना है। Just because Corona has come, lockdown has happened, God is not sleeping. कोरोना हो गया, आज आ गया है, लॉकडाउन हो गया, इसका मतलब प्रभु सो रहे, ऐसा नहीं है। No, नहीं, the God of Israel never sleeps or slumbers. इज़राइल का परमेश्वर कभी नहीं सोता है। His eyes behold you, उनकी आंखें आपके ऊपर है and He is a loving Father. और वो प्रेमी पिता है। In times of difficult times, He will be more nearer than ever. मुश्किल के समय में आपके और भी करीब होगा। One voice from you, and God will come forth and help you. जैसे आपकी पुकार उठेगी प्रभु के पास, प्रभु आपके पास दौड़े चले आएंगे। In fact, many of you are going to encounter angelic experiences. आप में से कुछ लोग स्वर्गदूतों का भी अनुभव करोगे। Because when you pray, God will send His angels to minister to you. क्योंकि जब आप प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर स्वर्गदूतों को स्वतंत्र करेगा आपको मिलने के लिए। Some of you in the time of worship, you are going to encounter the Almighty God. आप में से कुछ लोग जैसे आप आराधना करोगे तो आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मिलोगे। Like Jacob slept in the night. जैसे याकूब सोया रात में, Suddenly he had a dream. अचानक उसको सपना आया, Suddenly heaven opened up. अचानक से स्वर्ग खुल गया। Wow, some of you are going to have encounters in your dreams. आप में से कुछ लोगों का प्रभु के साथ आमना सामना होगा सपनों में। Heaven will open up over you. स्वर्ग आपके ऊपर खुल जाएगा। Angels of God will come down and go up and come down. परमेश्वर के स्वर्गदूत ऊपर आएंगे, नीचे जाएंगे। They will bring messages from the Almighty God for you. वो प्रभु की ओर से संदेश लेकर आएंगे आपके लिए। I want to prophesy over you. मैं आपके ऊपर भविष्यवाणी करना चाहता हूँ। God will speak in your heart प्रभु आपके हृदय में बात करेंगे। what to do. क्या करना है? And when you do it, जब आप करोगे, your miracles will explode for the glory of God. आपके चमत्कार होने लगेंगे प्रभु की महिमा के लिए। So be encouraged. तो उत्साहित हो जाओ। Your God is for you. आपका परमेश्वर आपके लिए है And He loves you. और वो आपसे प्यार करता है। I understand we are all in lockdown, so we cannot come together and worship the Lord together as a family of God. मैं जानता हूँ लॉकडाउन के कारण हम सब मिलकर आराधना नहीं कर पाते प्रभु का परिवार होने के नाते। But I still want to say thank you मैं फिर भी धन्यवाद कहना चाहता हूँ that we are able to connect with you all today. कि आज हम आपके साथ जुड़ पा रहे हैं। So I want to talk to you about God answering prayer. तो मैं आपसे आज बांटना चाहता हूँ कैसे प्रभु जवाब देते हैं प्रार्थनाओं को। He is a good God. वो भला परमेश्वर है। Very, very good God. बहुत भला He's परमेश्वर, an amazing God. अद्भुत परमेश्वर है। So today I want to talk to you about prayer. तो आज मैं आपके साथ प्रार्थना के बारे में बांटना चाहता हूँ। Very simple, बहुत आसान but very powerful it will लेकिन be. बहुत सामर्थ्य। Many of you do what I am going to say. आप में से बहुत लोग जो ये करते हो जो मैं कहने वाला So हूँ, I want to encourage you, keep doing it. तो मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि करते रहो। Because God's eyes and ears are open to you. क्योंकि प्रभु के आंखें और कान आपकी ओर लगे हुए हैं। And He's saying, when will my child open his mouth or her mouth and speak to me?
और प्रभु कह रहा है कब मेरा बच्चा अपना मुंह खोलेगा और मुझसे बात करेगा। So I want to talk to you about prayer. तो मैं आपके साथ प्रार्थना के बारे में बांटना चाहता So हूँ। my dear wife, Pastor Tejal, she made food for us today. तो मैंने आज सबके लिए खाना बनाया। Yeah, so you're welcome to come home and eat with us. तो आपका स्वागत है, आप आके खा सकते हो हमारे साथ। So she has made something today. तो मैंने आज कुछ तो बनाया है। Suppose she has made sambar today. शायद अगर मैंने आज सांभर बनाया, So sambar you just don't make with water. तो सांभर सिर्फ पानी से नहीं बनता, You need to put vegetables. तो उसमें सब्जियां हो जाती है, You need to put some masala. मसाला लगता है, You need to put it on fire. आग पे लगाना पड़ता है। So to make sambar, there are some things to be put. तो सांभर बनाने के लिए कुछ चीजों को डालना पड़ता So है। also for your prayer to be effective and powerful, so that God will answer your prayer, you have to learn to put some things in your prayer. तो आपकी प्रार्थना प्रभावशाली होने के लिए आपको भी आपकी प्रार्थना में कुछ चीजों को डालना जरूरी है। So today, I think I want to tell you 4 things which you should put in your prayer so that your prayer will become powerful and effective. तो आज मैं आपको 4 चीजें बताना चाहता हूँ जो आपने आपकी प्रार्थना में डालना है ताकि आपकी प्रार्थना प्रभावशाली हो। Yeah, I have a simple question for you before I tell you what to put in your prayer. मेरे पास आपके लिए एक सवाल है बताने के पहले। Yeah, what is prayer? प्रार्थना है क्या? Let me ask you the question again. फिर से आपको सवाल पूछता हूँ। What is prayer? प्रार्थना है क्या? Yeah. Now, I am not talking about prayer as fellowship with God, okay? प्रार्थना जिसमें हम प्रभु के साथ संगति करते हैं, मैं उसके बारे में नहीं बात कर रहा हूँ। I am talking about prayer where you have a need and you take it to God. मैं उस प्रार्थना की बात कर रहा हूँ जहाँ पे आपके पास एक जरूरत है और उस जरूरत को आप प्रभु के पास लेकर आते हो। At the sound of my voice, every person hearing, everybody has a need right now. जैसे मैं बात कर रहा हूँ, मेरी आवाज आप सुन रहे हो, हर एक व्यक्ति के पास जरूरत है। And God is ready to do a miracle also. और प्रभु तैयार है आपके लिए चमत्कार करने के लिए। So why do I pray? तो मैं क्यों प्रार्थना करता हूँ? Because I have a need. क्योंकि मेरे पास एक जरूरत है। Maybe physical need. शायद शरीर में जरूरत Maybe है, financial need. पैसों में जरूरत है, Maybe there is strife in my home. शायद मेरे घर में झगड़ा चल रहा है, Maybe there is a problem in my home. शायद मेरे घर में समस्या है, Maybe I am living in sin. शायद मैं ही पाप में जी रहा हूँ, Maybe there is sickness in my family. शायद मेरे परिवार में बीमारियां हैं, Maybe I lost my job. शायद मेरी नौकरी चली गई, I don't know. पता नहीं। But we all have needs in our life. लेकिन हम सबके जीवन में जरूरतें हैं And we try to meet it. और हम उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। And we thank God for the people, but people have limit. हम धन्यवाद करते हैं लोगों के लिए, लेकिन लोगों की सीमाएं होती है। We thank God for the doctors, but they have limit. हम डॉक्टरों के लिए भी धन्यवाद करते हैं, लेकिन डॉक्टरों की भी सीमाएं होती We है। thank God for people who have money, but they cannot keep giving you always and always, you know. धन्यवाद उन लोगों के लिए जिसके पास पैसे है, लेकिन वो हमेशा तो आपको नहीं दे पाएंगे। Man has limit, मनुष्य सीमित है, but our God is a God without limit. लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो बिल्कुल सीमित नहीं है। So we are coming to that God who is full of resources. हम ऐसे परमेश्वर के पास आ रहे हैं जो पूरी तरह से भरा हुआ है। Yes. So again, coming back to prayer, फिर से हम प्रार्थना में लौटते हैं। Psalm 86 verse 1 says, वचन संहिता 86 और वचन 1, God listens to me परमेश्वर मेरी सुनते हैं and he answers my prayer. और मेरी प्रार्थना का जवाब देते हैं। What a beautiful scripture. कितना सुंदर वचन है। You should be encouraged, excited to just hear this verse. आपने उत्साहित होना है ये वचन सुनकर। God listens to me, प्रभु मेरी सुनते हैं, answers me. मुझे जवाब देते हैं। Why? क्यों? For I am helpless and I'm weak. क्योंकि मैं बिना मदद का हूँ और मैं कमजोर हूँ। मुझे मदद चाहिए क्योंकि मेरे जीवन में जो जरूरतें हैं वो मैं पूरी नहीं कर सकता हूँ, लोग पूरी नहीं कर सकते हैं। हे परमेश्वर, मुझे मदद चाहिए क्योंकि मेरे जीवन में इतने सारी जरूरतें हैं। So why do I go to God in prayer? तो मैं क्यों प्रार्थना में प्रभु के पास जाता हूँ? Because I have needs. क्योंकि मेरे पास जरूरतें हैं। Maybe you don't have a need, but I have so many needs. शायद आपके पास कोई जरूरत नहीं, लेकिन मेरे पास बहुत जरूरत I है। catch the feet of Jesus and I tell him, Lord, if you don't meet my need, I am khalas. मैं प्रभु के पैरों को पकड़ता हूँ, कहता हूँ प्रभु अगर आप मेरी जरूरत पूरी नहीं करोगे तो खत्म हो गया। Blessed is the man because God has met his needs. धन्य है वो व्यक्ति जिसकी जरूरत है प्रभु पूरी करते हैं। So prayer means I have a need and I go to God and I tell him, I want you to meet my need. तो प्रार्थना का मतलब है मेरे पास जरूरत है और मैं प्रभु के पास जाता हूँ, कहता हूँ प्रभु ये जरूरत आप ही पूरा कर सकते हो। Now let me talk about what you should put in your prayer.
आइए मैं आपसे बात करूं कि प्रार्थना में आपने क्या क्या डालना है। Because when you put those things in prayer, I want to tell you, your prayer will become prayers which are powerful. क्योंकि जब आप उन चीजों को डालोगे तो आपकी प्रार्थनाएं प्रभावशाली हो And when जाएंगी। God hears it, और जब प्रभु सुनेंगे, God gets excited. प्रभु भी उत्साहित हो जाएंगे। Right now, God is sitting on His throne and He is hearing us. इस वक्त प्रभु अपने सिंहासन पर बैठे हैं और वो हमें सुन रहे हैं। And the Holy Spirit who is speaking through me is also in your heart, working convictions in your heart. और वही पवित्र आत्मा जो मेरे द्वारा बात कर रहे हैं वो आपके जीवन में भी एहसास ला रहे हैं। There are lies in your mind which God is going to break it right now as the word of God comes to you as a two-edged sword. आपके मन में कुछ झूठ है जो प्रभु तोड़ेंगे अपने वचन के द्वारा, जो दो-धारी तलवार है। Yeah, for years and years, these were like lies which were put inside, became strongholds. But today, the sword of the Spirit will be used by the Spirit of God, and it will cut them. सालों से ये सब झूठ है, जमा हुए आपके मन में, लेकिन आज प्रभु उसे नीचे गिराएंगे। So when the Son sets you free, you are free indeed. तो इसलिए जब पुत्र आपको स्वतंत्र करता है तो आप सच में स्वतंत्र हो जाते जब हो। यीशु तुम्हें स्वतंत्रता देता है ना, तुम स्वतंत्र सही हो चुके हो यीशु के नाम में। You will be free indeed. आप स्वतंत्र हो जाओगे। And these are the words of the Lord. ये प्रभु के शब्द हैं। So get ready. तो तैयार हो At the जाओ। sound of my voice, some of you are getting healed, some of you are getting delivered. Right now, miracles are happening for you. जैसे मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, इस वक्त चमत्कार हो रहे हैं। आप में से कुछ लोग चंगाई पा रहे हैं। I see heaven open right now. मैं इस वक्त स्वर्ग को खुला देख I रहा see हूँ। angels of God released for you. मैं देख रहा हूँ प्रभु के स्वर्गदूत आपके लिए स्वतंत्र किए गए। Some of you within this very week, before this week gets over, you will hear major miracles happening for you. आप में से कुछ लोग ये सप्ताह पूरा होने के पहले ही आपके लिए बड़े-बड़े चमत्कार के बारे में आप सुनोगे। People who have forgotten you will suddenly call you. वो लोग जो आपको भूल गए, वो अचानक आपको फोन करेंगे। Money which was stuck suddenly will open up for you. पैसे जो अटके हुए थे, अचानक से आपके लिए वो खुल जाएंगे। Relationships which were damaged for years, those relationships will be smooth and healed in the name of Jesus. वो रिश्ते जो खत्म हो गए थे, वो अचानक से ठीक हो जाएंगे यीशु के नाम में। Because I hear in heaven courts a declaration being made. God is saying, send help to my people. क्योंकि मैं स्वर्ग के कोर्ट में मैं सुन रहा हूँ ये घोषणा को कि प्रभु कह रहे हैं मेरे लोगों के लिए मदद को भेजो। And in the courts of heaven, Jesus, like a lawyer, is standing and talking to the Father for you. और स्वर्ग के कोर्ट में यीशु एक वकील के जैसे खड़े और आपके लिए बात कर रहे हैं। You are going to win. आप जीतने वाले हो। You are going to win. आप जरूर जीतोगे। God is going to answer your prayer. प्रभु आपके प्रार्थना का जवाब देंगे। Even if your prayer is getting delayed, don't worry. God is saying, just endure. छोड़ना नहीं, लगे रहो, क्योंकि तेरा जो प्रभु है तेरे साथ है उस तकलीफ में. Don't leave. Just be there. Just stay there. Your salvation is coming. छोड़ो मत, आप वहीं पे रहो, आपका उद्धार आ रहा है। Amen. So now let me come back. आइए फिर से लौटेंगे। Because I can keep saying, but I have got short time, so I have to teach you also. Otherwise, you will say Pastor Vijay Nada doesn't teach. मेरे पास थोड़ा समय है और मुझे आपको सिखाना भी है, वरना आप कहोगे पास्टर विजय नाडा सिखाते नहीं। Yeah, because people say that Pastor Vijay Nada को सिखाते नहीं आता है. So sometimes I feel very sad for people. कि मुझे कभी-कभी उदास महसूस होता है लोगों के लिए। Very sad. बहुत उदास। But I want to teach you. लेकिन मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। Today, the word of God is going to bring freedom to you. आज प्रभु का वचन आपके लिए आजादी लाएंगे। Hear the word very carefully. प्रभु का वचन सुनो। As I speak, the Spirit of God is going to open your mind. जैसे मैं बात करूंगा, परमेश्वर का आत्मा आपके मन को खोल देगा। Okay, so the first thing which should be seen in your life of prayer तो पहली बात जो आपके प्रार्थना में जीवन में दिखाई देना है, is called thanksgiving. उसे धन्यवाद कहते हैं। In John chapter 11, verse 41. यूहन्ना 11 और 41। John 11, verse 41. यूहन्ना 11 और वचन 41। Jesus stood before the tomb of Lazarus. यीशु लाजरस के कब्र के पास खड़े हुए। And as they rolled the stone away, और जैसे वो पत्थर हटाया गया, you know, Jesus lifted his hand. यीशु ने अपने हाथ उठाए। He's beginning to pray. वो प्रार्थना करना शुरू करता When है। you pray, जब आप प्रार्थना करते हो, see how Jesus prayed. देखो यीशु ने कैसे प्रार्थना की। The way he prayed, you pray. जैसे उसने प्रार्थना की वैसे ही आप If you करो। pray like that, same miracles will happen in your life. अगर आप वैसे ही प्रार्थना करोगे तो वैसे ही चमत्कार आपके जीवन में भी होंगे। How did he pray? कैसे प्रार्थना की? Father,
पिता, thank you that you have heard me. धन्यवाद क्योंकि आपने मेरी प्रार्थना सुन ली है। Wow, how many of you can say with confidence, thank you, Father, because you have heard me? आप में से कितने लोग इतने आत्मविश्वास से कह सकते हो कि धन्यवाद पिता क्योंकि आपने मेरी प्रार्थना सुन ली है। Can I say something to you? क्या मैं आपसे कुछ कहूँ? God hears your prayer because of the blood of Jesus. ये परमेश्वर आपकी प्रार्थना इसलिए सुनते हैं क्योंकि यीशु का ये लहू के कारण। You may be a holy man, आप पवित्र व्यक्ति हो सकते हो and if you are holy, it is because the Holy Spirit has helped you. और अगर आप पवित्र हो तो ये इसलिए है क्योंकि पवित्र आत्मा ने आपकी मदद की है। So don't boast in the way you live. तो उसमें घमंड मत करो, आप जैसे जीते हो इसमें। Thank the Lord for the way you live, प्रभु को धन्यवाद दो जिस तरह से आप जीते हो because इसलिए, your help has come from the Lord. क्योंकि आपको प्रभु की ओर से मदद मिली है। But लेकिन I don't take my works when I go to God. जब मैं प्रभु के पास जाता हूँ मेरे कामों को लेकर I साथ में नहीं take the जाता, blood of Jesus. मैं यीशु के लहू को लेके जाता हूँ। And my Bible says, और मेरा पवित्र शास्त्र कहता है God hears the cry of the righteous. जो धर्मी है उसकी पुकार को प्रभु सुनते हैं। And you are made righteous because of the blood of Jesus. और यीशु के लहू के कारण आपको धर्मी ठहराया गया है। See what Jesus is saying to the Father. देखो यीशु पिता से क्या कह रहे हैं? Father, thank you. पिता धन्यवाद, You have heard me. आपने मेरी प्रार्थना सुनी है। If he has heard, he will answer. अगर उसने सुना है तो जवाब भी देगा। And in verse 42, और वचन 42 में, verse 42, वचन you know 42, what Jesus is saying? आपको पता है यीशु क्या कहते हैं? You always hear me. आप तो हमेशा मेरी सुनते रहो। When you come to that place in prayer, you know God hears you always. I want to tell you, you will be confident to pray. जब आप प्रार्थना में ऐसे स्तर पे आओगे जहाँ पे आप समझ जाओगे कि प्रभु आपको हमेशा सुनते हैं, तो आपको आत्मविश्वास होगा प्रार्थना करने में। Do you know? क्या आपको पता है? Big miracle happened. बड़ा चमत्कार हुआ। What miracle happened? कौन सा चमत्कार? 4 days Lazarus was in the grave. 4 दिन से लाजरस तो कब्र में था। And the sisters were saying it will be smelling. और बहनें कह रही थी कि तो अब तो बदबू आ रही होगी। Very true. सच है। But I want to tell you, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, my God has power to bring you out of death situation. मेरे परमेश्वर के पास इतना सामर्थ्य है कि मरी हुई परिस्थितियों में से आपको बाहर निकाले। And he brought Lazarus out. और उसने लाजरस को बाहर निकाला। But I'm teaching you about prayer. लेकिन मैं आपको प्रार्थना के बारे में सिखा रहा हूँ। In prayer, प्रार्थना में thanksgiving is very important. धन्यवाद देना बहुत महत्व का है। Why do I thank God? मैं प्रभु को क्यों धन्यवाद देता Very हूँ? important. बहुत महत्व का है Because my God is a good God. क्योंकि मेरा परमेश्वर भला परमेश्वर है। Psalm 107 and verse 1 says, oh, give thanks to God because he's a good God. वचन संहिता 107 वचन 1 कहता है परमेश्वर को धन्यवाद दो क्योंकि वो भला परमेश्वर है। We serve a good God. हम ऐसे परमेश्वर की सेवा करते हैं जो अच्छा है। Just think about the Father. पिता के बारे में सोचो, He loved you and me so much उन्होंने आपको और मुझे इतना प्यार किया that he allowed Jesus to die on that cross. कि उन्होंने यीशु को अनुमति दी हमारे लिए मरने के लिए। And when our sins came on Jesus, और जब हमारे पाप यीशु के ऊपर आए, you know what happened? आपको पता है क्या हुआ? The Father and the Holy Spirit left Jesus. पिता और पवित्र आत्मा ने यीशु को छोड़ दिया। All this for whom? ये सब किसके लिए? For you, आपके लिए, for me. मेरे लिए। That blood which was shed, वो लहू जो बहाया गया, that willingness to go through separation for you and me. Why? वो यीशु की इच्छा, वो अलगाव से गुजरने के लिए आपके और मेरे लिए क्यों? असं का परमेश्वरा तू असं का केलं? कारण तो चांगला आहे आणि तो तुझ्यावर आणि माझ्यावर प्रेम करतो. क्योंकि वो भला है और वो आपसे और मुझसे प्यार करता है। Hallelujah. Psalm 56 verse 12 says. भजन संहिता 56 और वचन 12 कहता है। Psalm 56 verse 12. भजन संहिता 56 वचन 12। In the NLT Bible, okay? NLT बाइबल में, There's a Bible called NLT translation. If you see there, अगर आप वहाँ पे देखोगे, it says, give sacrifice of thanks because God has helped you. धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ क्योंकि प्रभु ने तुम्हारी मदद की है। हो, प्रभूने तुला मदत केली आहे का? क्या प्रभु ने आपकी मदद की है? प्रभूने काल तुला मदत केलं का? क्या कल प्रभु ने आपकी मदद की है? जे श्वास तुझ्या नथनामध्ये चालू आहे ना, ते पण प्रभूकडनं तुझ्यासाठी गिफ्ट आहे. आपके नाक में जो श्वास है वो भी प्रभु की ओर से आपके लिए भेंट है। काल जेवण केलं का? कल आपने खाना खाया क्या? चव लागली का तुला? अ, टेस्ट लगा क्या? ये भी प्रभु के पास से तोहफा है. Take the words, I will tell you the verse. वचन ले लो। Isaiah 42 verse 5 says,
breath is a gift from God. यशाया 42 वचन 5 कहता है कि जो श्वास है वो भी प्रभु की ओर से भेंट है। Isaiah 42 verse 5. यशाया 42 वचन 5। Ecclesiastes chapter 3 and verse 13. इक्लेसियास्टेस 3 और 13। वो हमको मराठी में भी नहीं मालूम, हिंदी में भी नहीं मालूम, आप लोग समझ लो, ओके? Ecclesiastes chapter 3 verse 13 में इक्लेसियास्टेस 3 और 13 उसमें लिखा है खाना, shelter, रहना, and even you may work hard, you will get money, but to enjoy the hand of your labor is a gift from God. आप काम करते हो, आप परिश्रम करते हो, पैसा कमाते हो, लेकिन उसका आनंद लेना वो भी प्रभु की ओर से भेंट है। याद रखना, प्रार्थना धन्यवाद के बिना चालू मत करो. Don't start prayer without thanksgiving. प्रार्थना को धन्यवाद के बिना शुरू मत करो। Number 2. दूसरी बात, What should I do मुझे क्या करना है when I pray? जब मैं प्रार्थना करता हूँ? I should praise the Lord. मुझे प्रभु की स्तुति करना है। Yeah. In fact, the psalmist says in Psalm 118 and verse 32, I think, okay. भजन संहिता 118 और वचन 32 में It says, the Lord is my song. उसमें लिखा है कि परमेश्वर मेरा गीत है। Yeah. Now you can sing a song, that is okay. आप गीत गा सकते हो, वो ठीक है। And you can praise the Lord. आप प्रभु की स्तुति कर सकते हो। But praise is not just song. लेकिन ये स्तुति करना सिर्फ गीत नहीं होते। What does the psalmist say? भजन संहिता लिखने वाला क्या कहता है? The Lord, प्रभु, तू माझं गीत आहे, तुझे मैं जानता हूँ, तुझे मैंने देखा है और तुझे देखकर मैंने तेरे बारे में एक गीत गाया है. Lord, you are a song. प्रभु आप ही मेरा गीत हो। So what is this praise? तो ये स्तुति क्या होती है? You know something about your God. आप आपके परमेश्वर के बारे में कुछ तो जानते हो। You saw some beauty of your God. आपने कुछ तो प्रभु की सुंदरता देख ली And you declare it. और उसको आप घोषणा करते हो। When you declare the praise of God, जब आप प्रभु की स्तुति की घोषणा करते हो, I want to prophesy and tell you, मैं भविष्यवाणी करके आपके ऊपर कहना you चाहता हूँ, will shut the mouth of the devil. आप शैतान का जो मुंह है उसे बंद कर दोगे। You will shut the mouth of the devil. शैतान का मुंह आप बंद कर दोगे। His mouth is continuously working against you. उसका मुंह हमेशा आपके विरोध में चलता रहता है। But the Lord has given you a grace of praise, and if you begin to declare the beauty of God, the beauty of Jesus, I want to tell you, God will shut the mouth of the devil. लेकिन प्रभु ने आपको ये स्तुति दी है करने के लिए, और जब आप करने लगोगे प्रभु आपके लिए शैतान का मुंह बंद कर देगा। Amen. Psalm 66 verse 17 says. भजन संहिता 66 और वचन 17 कहता है। Psalm 66 verse 17 says. भजन संहिता 66 वचन 17। It says, I cried out to him for help. इसमें लिखा है कि मैंने प्रभु को पुकारा मदद के लिए। What is he doing? क्या कर रहा है वो? He's praying. वो प्रार्थना कर रहा है। He said, I cried out to him for help. उसने कहा कि मैंने पुकारा प्रभु को मदद के लिए। And then he says, और फिर कहता है, as I cried out to him for help, जैसे मदद के लिए मैं पुकार रहा था, I was praising you. मैं प्रभु की स्तुति भी कर रहा था। Praise cannot be separated from prayer. स्तुति को प्रार्थना से आप अलग नहीं कर सकते। प्रार्थनाला तुम्ही स्तुतीपासून अलग नाही करू शकत नाही. You cannot separate them. आप उनको अलग नहीं कर सकते हो। Because in prayer you are going to a God with your need. क्योंकि प्रार्थना में आप प्रभु के साथ आपकी जरूरत को लेके जा रहे हो। And when you begin to praise, और आप जब स्तुति करने लगते हो, something will happen. कुछ तो होगा। Okay, now suppose you are sick in your body. तो मान लो आप आपके शरीर में बीमार हो। Okay, so yeah, we know that by the stripes of Jesus we were healed. We know it. हम ये जानते हैं कि यीशु के कोड़े खाने के द्वारा हम चंगे हो चुके हैं। ये हम जानते हैं। But why don't you praise the Lord before you tell the Lord to heal your body? क्यों ना आप पहले प्रभु की स्तुति करो, उसके बाद कहो प्रभु को कि आपको ठीक करे। Oh, so you may say, how to do that, Pastor? तो आप कहोगे ये कैसे किया जाता है? Simple. आसान है। You tell the Lord, आप प्रभु से कहो, Lord, प्रभु, when that woman with the issue of blood, she touched you, प्रभु वो स्त्री जिसको लहू बहने की बीमारी, जब उसने आपको छुआ, power just flew out of you. प्रभु वो सामर्थ आपके अंदर से बहने लगा। And it just entered that woman. और वो स्त्री के शरीर में प्रवेश किया। And instantly she got healed. और एकदम एक ही क्षण में वो ठीक हो गई। What a God you are. प्रभु आप
कैसे परमेश्वर हो। So when you begin to talk like this to God, तो जब आप ऐसे प्रभु से बात करने लगते हो, what are you doing? आप क्या कर रहे हो? You are telling him his beauty. आप प्रभु को प्रभु की सुंदरता बता रहे He's हो। a God who heals you. वो ऐसा परमेश्वर है जो वो चंगाई देता है। Now you have a need. Suppose you have a financial need मान लो आपके पास पैसों की जरूरत है and you use your money correctly as the Lord is telling you. और आप आपके पैसे का सही इस्तेमाल करते हो जैसे प्रभु कहते हैं। So when you have a need, what do? तो जब आपके पास जरूरत आती है तो आप क्या करते हो? Very simple. बहुत आसान। You tell the Lord, आप प्रभु से कहो, God, that day you went to the temple प्रभु उस दिन आप मंदिर में गए थे and there they asked for tax और वहाँ पे लोगों ने टैक्स मांगा and you did not have money in the pocket. और आपके पॉकेट में पैसे नहीं थे, No money in the bank account. बैंक में भी पैसे नहीं थे। So suddenly तो अचानक you knew exactly where that money is. प्रभु आप तो जानते थे कि पैसे कहाँ पर है। So you told your disciples, तो आपने आपके शिष्यों से कहा, go to the lake, जाओ वो तालाब में, throw the catch. जाल डालो। हाँ, जाल डालो, मैंने मच्छी पकड़ने के लिए वो डालो जो भी है. Okay, throw the bait. डालो And the first fish you catch. और वो पहली मछली जिसको आप तुम पकड़ोगे त्याच्या तोंडात एक शिक्का भेटेल, काढायचं त्याला. उसके मुंह में एक सिक्का मिलेगा, उसको निकालो। क्या कर रहे हैं हम लोग? What are we doing? हम क्या कर रहे हैं? We are praising God. हम प्रभु की स्तुति कर रहे हैं। We are telling God, हम प्रभु से कह रहे हैं, you are this Lord. प्रभु आप तो ऐसे हो, तू आहे असा. आप तो ऐसे ही हो। फक्त बायबल वाचण्यासाठी वाचायचं नाही, वाचल्यानंतर आम्ही प्रभु बरोबर बोलायचं, त्याला सांगायचं, हे तू आहे देवा. सिर्फ बाइबल पढ़ने के लिए पढ़ो मत, उसके बाद प्रभु से कहो, प्रभु आप तो ऐसे हो। एक दिन पत्रस पूर्ण दिवस पूर्ण रात्रभर काम केलं, एक पण मासा नाही. एक दिन पत्रस जो है पूरी रात उसने काम किया और एक भी मछली नहीं पकड़ी। आणि सकाळी प्रभू म्हणतात, आतमध्ये चांगलं आतमध्ये जायचं आणि नंतर नेट्स घालायचे. सुबह में प्रभु ने उससे कहा कि तुम गहराई में जाओ और वहां पे जाल डालो। काय झालं? क्या हुआ? चमत्कार झाला. वहां पे चमत्कार हुआ। हो, तर प्रभूला सांगायचं, तुला माहित आहे प्रभू कुठं चमत्कार होणार आणि तुला हे पण माहित आहे प्रभू कसं चमत्कार होणार, तर मला सांग प्रभू कसं करायचं, कारण मला माहित आहे तुझ्या तोंडात शब्द आहे, फक्त बोल, होणार. तो प्रभु को कहो, प्रभु आप जानते हो कि कहाँ पर चमत्कार है, आप ये भी जानते हो कि चमत्कार कैसे होगा, तो प्रभु आपका मुंह खोल के कहो सिर्फ। So you talk to God. तो आप प्रभु से बात करो। So by your praise, God is not becoming big and big and big. तो आपकी स्तुति के द्वारा प्रभु और बड़े नहीं हो रहे। God is too big. प्रभु वैसे ही बहुत बड़े हैं। We just know little about God. हम तो सिर्फ थोड़ा सा जानते हैं उनके बारे So में। that small thing you should take it and make it big. वो जो थोड़ा सा आप जानते हो उसे बड़ा करो। So what I do in my life, तो मैं मेरे जीवन में क्या करता हूँ? I keep talking to God about Him. मैं प्रभु से प्रभु के बारे में ही बात करते रहता हूँ। And then a time comes, He says, "Okay, what do you want, son?" फिर एक ऐसा समय आता है जहाँ पे प्रभु कहते हैं क्या चाहिए बेटे? So I tell him, "What you did that time, na, you have to do for me also." तो मैं कहता हूँ प्रभु उस वक्त आपने जो किया ना वो आपको मेरे लिए भी करना होगा। Because Hebrews 13 verse 8, Jesus is the same yesterday, today, and forever. क्योंकि इब्रानियों 13:8 में लिखा है यीशु हमेशा के लिए एक समान ही है। I have too many things to tell you about praise, but I don't have time. So why do you praise the Lord? तो मेरे पास बहुत सारी चीजें स्तुति के बारे में कहने के लिए, लेकिन मेरे पास समय नहीं है। हम स्तुति क्यों करते हैं? You praise the Lord because you saw something beautiful about Jesus. हम इसलिए स्तुति करते हैं क्योंकि हमने प्रभु के बारे में कुछ सुंदर बातें देखी। Maybe in the Bible, शायद वचन में, maybe in the stories in the Bible, शायद बाइबल में जो कहानियां है उसमें, maybe you heard testimonies. शायद आपने कुछ गवाहियां सुनी। I just heard right now, one of our हमारे चर्च में एक ब्रदर था, उसका जो अकाउंट है ना एकदम वो पैसा उसके कंजूस त्याच्या हातातून पैसे येणारच नाही आणि या लॉकडाऊन मध्ये काय लोकांचे पेमेंट नाही झाले आणि याला मिळणार नव्हतं, पण तुम्हाला माहिती आहे आमचा देव कसा आहे, आमचा प्रभू कसा आहे, तो बोलणारा प्रभू आहे लोकांच्या हृदयामध्ये. तुम्हाला माहित आहे का आमचा प्रभू असा आहे की लोकांच्या बेडरूम मध्ये जाऊन लोक जेव्हा झोपतात त्यांना हात मारून उठून तो बोलू शकतो, असा प्रभू आहे. आणि माझा विश्वास आहे की प्रभू तुमचा जो प्रभू आहे, माझा जो प्रभू आहे, बायबलचा जो प्रभू आहे ना, तो तुमच्यासाठी बोलणार आहे आणि लोक त्यांचे पर्स उघडून तुम्हाला आशीर्वाद देणार आहे येशूच्या नावाने.
Amen. Hallelujah. Okay. Now let me go to the third thing. Okay. तीसरी बात में Yeah, जाएंगे। because I've got only 5 more minutes, मेरे पास सिर्फ 5 मिनट है। and then I'm going to pray for you उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करना because I want to pray for you. क्योंकि मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। The third thing is you have to worship God. तीसरी बात है आपको प्रभु की आराधना करना है। Why worship God? क्यों प्रभु की आराधना करनी है? Revelation 4:11 says. प्रकाशित वाक्य 4 और 11। Revelation 4:11 says. प्रकाशित वाक्य 4 11। You are worthy to receive glory, honor and power. प्रभु आप तो योग्य हो प्रभु स्तुति आदर और महिमा के लिए। हे परमेश्वरा तू योग्य आहे स्तुती आणि महिमा आणि आदर आणि सन्मानासाठी तू योग्य आहे। तुमचा आणि माझा परमेश्वर योग्य परमेश्वर आहे। He is worthy for our worship. वो योग्य है हमारी आराधना के। And Matthew 4:10 says. मत्ती 4 और 10 कहता है। Matthew 4:10 says. मत्ती 4 और 10। Worship your God. तुम्हारे परमेश्वर की आराधना करो। And in prayer, worship always will go. और प्रार्थना में आराधना तो होना ही है। I just want to tell you something about miracles, okay? मैं आपको कुछ चमत्कार के बारे में कहना चाहता हूँ। Because I have no knowledge outside the Bible. मला जे पण माहिती आहे थोडंच माहिती आहे पण ते सगळं इथे लिहिलेलं आहे. Okay, when I see people coming to Jesus, जब मैं लोगों को देखता हूँ यीशु के पास आते हुए, miracles happen. चमत्कार होते हैं। So miracles happen when we come to Jesus. तो चमत्कार तब होते हैं जब हम यीशु के पास आते हैं। लांब नाही राहायचं, दूर नहीं रहने का, जवळ यायचं. पास में आना है। आणि जो आराधना करतो ना तो जवळ येतो प्रभू. जो आराधना करता है वो प्रभु के करीब आता है। क्योंकि आराधना प्रभु के सिंहासन के बाजू में होता है। परमेश्वराच्या सिंहासनाजवळ. Okay, now I want to give you a scripture over here. वचन देना चाहता हूँ because my time is getting up. समय जा रहा है। Matthew chapter 8 मत्ती 8 verse 2. और वचन 2। Matthew 8 and verse 2. मत्ती 8 और वचन 2। Here we see a leper coming to Jesus. यहाँ पे हम एक कोढ़ी व्यक्ति को देखते हैं, वो यीशु के पास आते हैं। This is a beautiful story. बहुत सुंदर कहानी। And as he comes to Jesus, जब वो यीशु के पास आता है, verse 2 says, वचन 2 कहता है, he worships Jesus. वो यीशु की आराधना करने लगता है। त्यांनी त्याच्या शरीराच्या हावभावाद्वारे प्रभूला आदर दिला, सम्मान दिला. He used his body to show respect. उसने अपने शरीर का इस्तेमाल किया प्रभु को आदर दिखाने के लिए। Yes. And as he worshipped, और जैसे आराधना कर रहा था, he said to the Lord, उसने प्रभु से कहा, Lord, प्रभु, I know that you can heal me. मैं जानता हूँ कि आप मुझे चंगाई दे सकते हो, But I don't know whether you are willing to heal me. लेकिन मैं ये नहीं जानता कि आप प्रभु मुझे चंगा करना चाहते हो क्या। So he knew something about God and he did not know something about God. तो वो प्रभु के बारे में कुछ चीजें जानता था और कुछ नहीं जानता था। What did he know about God? क्या जानता था वो? What did he know about Jesus? यीशु के बारे में क्या जानता था? Jesus can heal his leprosy. यीशु उसके कोढ़ को ठीक कर सकते हैं। But he said, I don't know whether you want to heal me, Lord. लेकिन वो ये नहीं जानता था कि प्रभु मैं नहीं जानता कि आप करना चाहते हो क्या। But the Bible says, लेकिन बाइबल में लिखा है, Jesus was moved with compassion. यीशु का दिल तरस से भर गया। Moved with compassion. तरस से हिल गया। Now today I want to prophesy over you before I start praying for you. मैं आपके ऊपर भविष्यवाणी करना चाहता हूँ प्रार्थना करने के पहले। Now this man, ये व्यक्ति, he did not have that much faith to receive a miracle. उसके पास इतना विश्वास नहीं था कि चमत्कार को वो ले सके। But still, लेकिन फिर भी Bible says, बाइबल में लिखा है, Jesus was moved with compassion. यीशु का हृदय तरस से हिल गया। When I read the Bible, जब मैं बाइबल पढ़ता हूँ, I see maximum miracles happening because of compassion. मैं देखता हूँ बहुत ज्यादा चमत्कार प्रभु के तरस के कारण होते हैं। Yeah, sometimes when our prayer is not answered for 10 days, 20 days, 1 month, 2 months, 3 months, 4 months, we are thinking what is happening. कभी-कभी हमारी प्रार्थना का जवाब नहीं मिलता है कुछ दिनों के लिए, महीनों के लिए, तो हम सोचते हैं क्या हो रहा है And we are not able to see. और हम देख नहीं पाते। So our understanding is very poor. तो हमारी समझ बहुत कमजोर है। So a lot of miracles happen because of the compassion of Jesus. तो बहुत सारे चमत्कार इसलिए होते हैं यीशु की तरस के कारण। Get ready because I see the eyes of the Lord are filled with compassion for you. तैयार हो जाओ क्योंकि मैं देख रहा हूँ प्रभु की आंखें जो है वो तरस से भर गई है The आपके लिए। same miracle which the compassion of God
did for this leprous man, that same compassion is going to touch you. वही तरस जिसके द्वारा यीशु ने ये कोढ़ी को ठीक किया, वही तरस आपको भी छूने वाली है। So the next verse says, अगला वचन कहता है, he was moved with compassion. वो तरस से हिल गया, And he touched the leper. तो उसने वो कोढ़ी को छुआ। Leviticus 13 says, you never touch a leper. ले व्यवस्था 13 कहता है कि कभी भी कोढ़ी व्यक्ति को छूना नहीं है। Why? क्यों? Because they are isolated from their family. They are isolated from fellowship with God. क्योंकि उनको अपने परिवार से अलग किया जाता है, परमेश्वर के साथ संगति से भी अलग किया Now जाता है। listen, I want to say something. अब सुनो, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। What did Jesus see in this man? यीशु ने इस व्यक्ति के अंदर क्या देखा? Compassion means to see. तरस का मतलब है देखना, And my Jesus can see. और मेरा यीशु देख सकता है। What did he see क्या देखा? in this crippled leprous man? ये कोढ़ी व्यक्ति के अंदर यीशु ने क्या देखा? He saw that this man was broken. यीशु ने देखा कि ये व्यक्ति टूटा हुआ है। He saw that this man was going through rejection. उसने देखा ये व्यक्ति तिरस्कार से गुजर रहा है। He saw he was away from his family. देखा कि ये व्यक्ति अपने परिवार से दूर है। He saw that now he cannot partake in the rituals in the house of God. यीशु ने देखा कि ये अभी मंदिर में भाग नहीं ले सकता है चीजों में। He saw his loneliness. यीशु ने उसके अकेलेपन को देखा। He saw his body. उसके शरीर को देखा। He saw the pus which was coming out of his body. वो जो पस बाहर आ रहा था सब देखा। Saw. देखा। And let me tell you, और कहने दो आपसे, Jesus is seeing you right now. यीशु इस वक्त आपको देख रहे हैं। The same God of compassion in the Bible. He is alive. वही तरस का परमेश्वर, बाइबल का परमेश्वर, वो जिंदा है। He is alive. वो जिंदा है। And his eyes are not blind. और उसकी आंखें वो अंधा नहीं है। His heart is not dead. उसका हृदय मरा हुआ नहीं है। He can see you. वो आपको देख सकता है। He sees your torment. वो आपके सताव को देख सकता है। He sees your trouble. आपके समस्या को देख रहा है। He sees the pain that you are in right now. जो दर्द से आप गुजर रहे हो उसे प्रभु देखता है। He sees the struggle in your family. जो संघर्ष आपके परिवार में उसे प्रभु देखता है। He sees the struggle that you have with sin. जो पाप के साथ आपका संघर्ष है उसे भी प्रभु देखता है। He sees the pain in your home. आपके घर में जो दर्द है वो भी प्रभु देखता है। He sees the pain of your poverty. आपकी गरीबी का दर्द भी प्रभु देखता है। It's a God who sees. वैसा परमेश्वर है जो देखता है। That's why. इसलिए There's a woman in the Bible बाइबल में एक स्त्री है who gave a name to God. जिसने प्रभु को एक नाम दिया। Her name is Hagar. उसका नाम है हगार। Hagar was sent away by Sarah. उसे सारा ने दूर भेज दिया था। Why? क्यों? Because Hagar despised Sarah. क्योंकि उसने सारा को तुच्छ जाना। And this trouble that she was in was because of her own sin. और ये जो समस्या जिसके अंदर वो थी वो उसके खुद के पाप के कारण थी। And she was slowly going to die in the desert. और वो ऐसे से वो मरुस्थल में मरने वाली थी। She's crying. रो रही थी। I don't know who she was crying to. मुझे पता नहीं वो किसके सामने रो रही थी। I don't know. मैं नहीं जानता। But Genesis 16 says, लेकिन उत्पत्ति 16 में लिखा है, wow, God sent an angel. परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को भेजा। Why did he send an angel? क्यों प्रभु ने स्वर्गदूत को भेजा? Because in the end, Hagar gives a name to God. क्योंकि अंत में हैगर जो है वो परमेश्वर को एक नाम देती है। You know what she gives the name? पता है क्या नाम देती है? Genesis 16 and verse 13. उत्पत्ति 16 और वचन 13। She said, this God is El Roi. उसने कहा कि ये परमेश्वर तो एल रोई है। El Roi. एल रोई That means the God who sees me. इसका मतलब है वो परमेश्वर जो मुझे देखता है। Beloved one. प्रियजनों, Yeah. Dear ones of the Lord. प्रभु के प्रियो, I want to tell you, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, the eyes of compassion are seeing you right now. प्रभु की तरस भरी आंखें आपको देख रही है। As the Lord helped Hagar, जैसे प्रभु ने हैगर की मदद की, that same God is going to help you. वही परमेश्वर तुम्हारी मदद करने वाला है। So what happened? तो क्या हुआ? Jesus was moved with compassion यीशु तरस से हिल गए and he touched the leper. और उसने उस कोढ़ी को छुआ। It would have been so easy to stand there and say, be healed.
कितना आसान होता, सिर्फ वहां पे खड़े रह के कहना कि चंगे हो जाओ, But he touched him लेकिन यीशु ने उसे छुआ because that was the biggest need of that leper. क्योंकि वो उस कोढ़ी की सबसे बड़ी जरूरत He थी। was dying inside because of rejection. वो अंदर मर रहा था तिरस्कार के कारण, He was dying inside because of isolation. वो अकेलेपन के कारण वो अंदर मर रहा था। आपको पता है क्या, इस वक्त कोरोना के कारण भी जिनको कोरोना हो रहा है उनको अकेला लेके जाते हैं, क्योंकि लोग कहते हैं कि कोरोना स्प्रेड होता है और कोई कोई लोग वापस आते नहीं, और जो आते हैं उनको समझता है अकेलापन क्या होता है। That's why Jesus touched him. इसलिए यीशु ने उसे छुआ। Today, आज at the sound of my voice, मेरी आवाज ही सुनते हुए I hear the Lord saying, मैं सुन रहा हूँ प्रभु को कहते हुए, my child, मेरे बच्चे, I love you. मैं तुमसे प्यार करता हूँ। My child, मेरे बच्चे, I have come to help you. मैं आया हूँ तुम्हें मदद करने के लिए। I will touch you in those areas where nobody can touch you. मैं उन क्षेत्रों में तुम्हें छूऊंगा जहाँ पे कोई भी तुम्हें नहीं छू सकता। कोड़ियों को देख के लोग भागते थे, लेकिन यीशु भागा नहीं। And today also, Jesus is not going to run from your need. He's going to come and touch you and meet your need. आज भी यीशु भागेगा नहीं, लेकिन वो आपको छुएगा, आपकी जरूरत पूरी करेगा। So I'm going to pray. और मैं प्रार्थना करूंगा। But I'm going to talk to you for 2 minutes before I pray. 2 मिनट में आपसे बात करूंगा प्रार्थना करने के पहले। Because I love your pastor, Pastor Vijay Mohar. क्योंकि मैं आपके पास्टर विजय मोहन से प्यार करता I हूँ। have a lot of respect for him. मैं उनको बहुत आदर देता हूँ। Lot of respect. बहुत आदर। Pastor, if you're there, accept our honor from us. पास्टर जी, अगर आप हैं तो हमारा आदर आप स्वीकार There करें। are very few people in this big nation who serve the Lord like you. इतने बड़े देश में बहुत कम लोग हैं जो प्रभु की सेवा आपकी जैसे करते हैं। I have learned so many things from you. मैंने आपसे बहुत सारी चीजें सीखी है। So I'm proud to call you as a man of God. तो मैं इसमें घमंड करता हूँ आपको कहने के लिए कि आप प्रभु के जन हो। I talk about you to many people मैं आपके बारे में बहुत लोगों से बात करता हूँ because you are an example. क्योंकि आप एक उदाहरण हो। And I hear the Lord saying about you, और मैं सुन रहा हूँ प्रभु को आपके बारे में कहते हुए, well done, my son. मेरे बेटे, तुमने बहुत अच्छा किया है। And I hear about your wife, और आपकी पत्नी के बारे में मैं सुनता हूँ, Sister Priya Mohar. सिस्टर प्रिया मोहर के बारे में। Jesus is saying, यीशु कह रहे हैं, my child, मेरे बच्चे, you walked with me तुमने मेरे साथ चले हो, even in the deepest, darkest valley. बहुत अंधकार से भरा हुई तराई में। You have never given up hope. तुमने आशा नहीं खोई है। And you know that I walk with you. और तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। And I will never give up your hand. और तुम्हारा हाथ मैं नहीं छोड़ूंगा। And your future is in my hand, my daughter. तुम्हारा भविष्य मेरे हाथों में है, मेरी बेटी। So I want to talk to all the church. तो मैं कलीसिया से कहना चाहता हूँ, You have a very blessed couple. आपके पास एक बहुत आशीषित जोड़ा है। All the pastors under his leadership. वो सारे पास्टर जो इनके अगुवाई के अधीन में है। I want to tell you, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, you have a man and woman आपके पास एक ऐसा पुरुष और स्त्री है who has been given to you as a gift. जो आपके लिए तोहफे के जैसे है। I am not saying they are perfect, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वो सिद्ध है, but I know they are in the process, walking, journeying with the Almighty God. कि मैं जानता हूँ कि प्रभु का कार्य उनके ऊपर चल रहा है जैसे वो प्रभु के साथ चल रहे हैं। So I want you to celebrate your pastor and his wife. मैं चाहता हूँ कि आप आपके पास्टर और उनकी पत्नी का उत्सव मनाएं। I thank God for their children. मैं धन्यवाद देता हूँ उनके बच्चों के लिए। I really love both of the children. दोनों बच्चों से सच में प्यार करता हूँ। Pray for you. और हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। Both the children. दोनों बच्चे, I want to give you an assurance मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ from the Lord. प्रभु की ओर से। The Lord is your father प्रभु आपका पिता है and also your mother. और आपकी माँ भी है। Every time you cry out, हर वक्त जब आप पुकारते हो, God is your comfort. प्रभु आपकी सांत्वना है। I see the Lord sitting with you all.
मैं देख रहा हूँ प्रभु आपके साथ बैठे हैं and God is comforting you. और प्रभु आपको सांत्वना दे रहे हैं। God is with you. प्रभु आपके साथ है। He has a beautiful future for you. प्रभु के पास आपके लिए बहुत सुंदर भविष्य है। Don't be lost. आप खो मत जाना, Stay focused. फोकस्ड रहना। Drink of the love of God every day. प्रभु के प्रेम से आप रोज पियो। You have wonderful mother and father कि बहुत अद्भुत माता पिता है who love the Lord. जो प्रभु से प्यार करते हैं। I celebrate both of you children. आप दोनों बच्चों का उत्सव मैं मनाता हूँ। I thank God for all the pastors under the leadership of Pastor Vijay Mohan and Pastor Priya Mohan. और पास्टर विजय मोर उनकी पत्नी के अधीन में जो सारे पास्टर्स हैं उन सबसे मैं उत्सव मनाती हूँ। Yeah, I celebrate you. मैं आपका उत्सव मनाती हूँ। I celebrate your faithfulness to their leadership. आपकी जो विश्वास योग्यता है उनके अगुवेपन के प्रति मैं उसका उत्सव मनाता हूँ। Yeah, and may you stay faithful. और होने दो कि आप विश्वास योग्य ही रहो। May you stay faithful. होने दो आप विश्वास योग्य रहो। Now to the church I want to say. अब कलीसिया से मैं कहना चाहता हूँ। Yeah, not because I spoke to your pastor. I hardly speak to your pastor because your pastor speaks very less. आपके पास्टर बहुत कम बात करते हैं इसलिए मैं ज्यादा उनसे बात नहीं करता। Yeah, now to the church I want to say. मैं चर्च से कहना चाहता हूँ। In this hour of challenge in their life, इनके जीवन में ये जो चुनौती का समय है, I want you to do two things for them. मैं चाहता हूँ आप उनके लिए दो बातें करो। One, पहला, I want you to pray with your heart. मैं चाहता हूँ आप पूरे दिल से उनके लिए प्रार्थना करो। And the second thing is I want you to begin to bless them financially. और दूसरी बात मैं चाहता हूँ कि आप उनको पैसों को लेकर उनको आशीषित करो। Not because they don't have money, इसलिए नहीं कि उनके पास नहीं है, but because they are your spiritual parents. वो आपके आत्मिक माता पिता है इसलिए। And I want to tell you, और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, heaven is watching स्वर्ग सब कुछ देखता है, what you're doing. आप क्या करते हो। And my prayer is now और मेरी प्रार्थना है that you as a church will rise up आप एक कलीसिया होने के नाते उठोगे and you will gather your shields of faith around them और आपके जो विश्वास के ढाल है उसे उनके इर्द गिर्द जमा करोगे in prayer, प्रार्थना में, and you will carry this couple through this hour. और ये जोड़े को उनके मुश्किल के समय में आप उठा के लेके चलो। We are with you. हम आपके साथ हैं, We love you all. हम आपसे प्यार करते हैं। And I want to tell you, और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, open your heart, अपने हृदय को खोलो, open your hands, अपने हाथों को खोलो and bless them. और उनको आशीषित Not करो। just words, सिर्फ शब्दों से नहीं, but financially. लेकिन पैसों के द्वारा। He has never asked for money. उन्होंने कभी भी पैसे नहीं मांगे, Never. कभी भी नहीं, And he will not ask. और वो मांगेंगे भी But नहीं। I want to tell you, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, as a member in the house of God, वो चर्च के मेंबर होने के नाते I want to tell you, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, open your heart अपने हृदय को खोलो, and bless them. उनको आशीषित करो। Sorry, Pastor, I did not take your permission to talk this, पास्टर माफ कीजिए, आपकी अनुमति नहीं ली ये बात करने के but लिए, I felt it from the Lord. लेकिन मुझे प्रभु की ओर से ये महसूस हुआ। But I still submit it to you, मैं फिर भी आपके ये अधीन लाता हूँ, and I give it to you. आपको देता हूँ। You decide whether this is from the Lord, you want to do it or not. आप देखो कि क्या ये प्रभु की ओर से है, आप ये करना चाहते हो कि नहीं करना But चाहते। my heart is, लेकिन मेरा हृदय ये है, open your hearts and bless your pastor. आपके हृदय को खोलो और अपने पास्टर को आशीषित करो। Heaven will say an amen over it. स्वर्ग आपके लिए आमीन कहेगा। I'm going to pray for you मैं प्रार्थना करूंगा for the last 5 minutes. आने वाले 5 मिनट। We are going to pray for Pastor Priya Mohan. हम पास्टर प्रिया मोड़ के लिए प्रार्थना करेंगे। Yeah, I really, she is my sister in the Lord. वो मेरी बहन है प्रभु में, And I have seen her labor, her passion for the Lord. और उनका जो परिश्रम है, प्यार है प्रभु के लिए मैंने देखा है। And we will pray together. और हम प्रार्थना साथ में करें। So join with me. तो आप मेरे साथ जुड़ जाओ। Loving Father, प्रेमी पिता, Almighty God, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, God of all glory, God of all praise, I want to say thank you.
I thank you प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ because you are an amazing God. क्योंकि आप अद्भुत परमेश्वर You हैं। are a God of miracles. प्रभु आप चमत्कार के परमेश्वर हैं। And I thank you और मैं आपको धन्यवाद देता that हूँ every sickness bows before you. क्योंकि हर एक बीमारी आपके सामने झुकती है। And we right now by faith, we send the word of healing to your daughter. और इस वक्त विश्वास से ये चंगाई का शब्द आपकी बेटी के लिए भेजते हैं। We gather together. हम मिलकर हम एक साथ मिलकर प्रभु, एक साथ मिलकर हमारा विश्वास मिलाकर we join together, oh Lord. हम अपना विश्वास मिलाकर And we pray in the name of और Jesus. यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। We come against every sickness in our body. उनके शरीर में हर एक बीमारी के खिलाफ हम आते हैं। Like the fig tree was cursed. जैसे वो अंजीर के पेड़ को श्रापित किया गया, I curse the sickness in that body right now in Jesus' name. उनके शरीर में जो भी बीमारी है उसे मैं श्रापित करता I हूँ। command that sickness to leave that body right now. वो बीमारी को मैं आज्ञा देता हूँ इस वक्त छोड़ के निकल जाए। Devil, I command you, take your hand off now. शैतान अपने हाथों को निकालो इस वक्त। Spirit of sickness, come out now in Jesus' बीमारी की name. आत्मा बाहर निकलो इस वक्त। Be healed by the stripes of Jesus. यीशु के कोड़े खाने के द्वारा आप बिल्कुल ठीक हो जाओ। That blood which Jesus shed through his body, by that power of the blood, be healed now. जो लहू यीशु ने बहाया उसके सामर्थ के द्वारा इस वक्त ठीक हो जाओ। Right now, I pray for every sick person who is hearing me. हर एक बीमार व्यक्ति के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो मुझे सुन रहा है। I come against you, spirit of sickness. हर एक बीमारी तुम्हारे खिलाफ में आता हूँ। Depression, I come against you. तुम्हारे खिलाफ आता हूँ। डिप्रेशन, Mental sickness, I come against you. मानसिक बीमारी में तुम्हारे खिलाफ आता हूँ। I come against your hold over their life. तुम्हारी जो पकड़ है उनके जीवन में उसके खिलाफ आता I हूँ। break your power now. उसकी सामर्थ को तोड़ता हूँ। I come against you, cancer. कैंसर में तुम्हारे खिलाफ आता I हूँ। come against you, corona. कोरोना वायरस तुम्हारे खिलाफ In आता the हूँ। mighty name of Jesus, यीशु के महान नाम में I break your power. तुम्हारे सामर्थ को तोड़ता हूँ। Jesus, I pray. यीशु में प्रार्थना करता हूँ। Lord, in families where there is strife, प्रभु परिवारों में जहाँ पे झगड़ा है, प्रभू मी ह्या वेळेस येशूच्या नावाने प्रार्थना करतो प्रत्येक परिवारामध्ये जिथं त्रास आहे प्रभू, जिथं प्रत्येक परिवारांमध्ये प्रभू वाद विवाद प्रभू चालू आहे, येशूच्या नावाने मी अधिकार घेतो आणि त्या आत्म्यांविरुद्ध मी लढतो येशूच्या नावाने आणि त्यांचा जो अधिकार ह्या परिवारांवर आहे त्याला मी तोड़तो येशूच्या नावाने. I break that power in Jesus' उस name. सामर्थ को मैं तोड़ता हूँ यीशु के नाम में। In the mighty name of Jesus, यीशु के महान नाम I में break that power. उस सामर्थ को तोड़ता हूँ। इस वक्त, right now, इस वक्त lay your hands on your head आपके जो हाथ है आपके सिर के ऊपर रखो, because I'm going to pray that you would be filled with the Holy Spirit of God. क्योंकि मैं प्रार्थना करने वाला हूँ कि आप पवित्र आत्मा से भर जाओगे। Lord, प्रभु I pray hunger for you would increase in their life. प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ आपके लिए भूख उनके जीवन में बढ़ जाए। Hunger for you. भूख आपके लिए। Pray, oh God, every kind of sin where they are stuck. I pray those bondages will be broken right now. प्रभु हर एक पाप जिसमें वो अटके हुए हैं वो टूट जाए, वो बंधन टूट जाए यीशु के नाम में। I break that power now. उसके सामर्थ को तोड़ता हूँ। I break every power of unclean spirit binding them. I break its power. हर एक अशुद्ध आत्मा उसके सामर्थ को तोड़ता हूँ इस वक्त। Lord, I pray, free them, oh God. प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ उनको आजाद करो। Jesus, यीशु right now, इस वक्त fill them with your Holy Spirit. आपके पवित्र आत्मा से उनको भर दो, Fill them totally. पूरी तरह से भर दो। Let them overflow. उन्हें तो वो उमड़ के आए, Overflow. वो उमड़ के आए, Overflow. उमड़ के आए In the mighty name of Jesus. यीशु के महान नाम में। Lord, I thank you. प्रभु धन्यवाद, I thank you. धन्यवाद। Lord, I also pray for their finances. प्रभु उनके पैसों के लिए भी मैं प्रार्थना करता I हूँ। pray, मैं प्रार्थना करता हूँ। Jesus, you know exactly where the finance miracle is there प्रभु आप जानते हो कि पैसों का चमत्कार कहाँ पर है and how to get that financial miracle. और कैसे वो पैसों का चमत्कार पाना है। So we pray that they will hear it तो हम प्रार्थना करते हैं कि वो सुनेंगे आपको and they will be able to receive it. और वो उसको प्राप्त कर पाएंगे। Father, I thank you. पिता मैं धन्यवाद देता हूँ। You gave me the grace and Pastor Tejo, the grace to serve your children. प्रभु आपने हमें अनुग्रह दिया आपके बच्चों की सेवा करने के लिए। I thank you. मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। I pray that every word which has been sown in the hearts of people, मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक शब्द जो इनके हृदयों में बोया गया है, I pray they will understand it मैं प्रार्थना करता हूँ वो समझेंगे, so that the devil will not be able to steal the word which has been sown. ताकि शैतान उस वचन को चोरी ना कर पाए जो बोया गया है। I pray मैं प्रार्थना करता a हूँ 30-fold, 30 गुना, 60-fold, 60 गुना, 100-fold, 100 गुना,
fruit, oh God. फल। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता Amen. हूँ। आमीन। Thank you, Pastor. थैंक यू पास्टर।